Assalamualaikum students, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, in today's video we are going to discuss another famous theory, that is Lev Vygotsky's socio-cultural theory, and I will explain this theory in detail with examples. So यहाँ पे reminder है कि channel को subscribe कर लें ताकि आपको latest updates receive होती रहें, and do like and share this video. Table of contents देख लेते हैं. Firstly, we will briefly discuss about the life of Lev Vygotsky, theorist. Then we will dive into his main theory, that is Lev Vygotsky's social culture theory, और उसके concepts को हम one by one discuss करेंगे. Firstly, we will discuss more knowledgeable other concept. Then we will discuss zone of proximal development, and then elementary mental functions, role of social influence in cognitive development, importance of language, development of private speech in young children, application of Vygotsky's theory, and at last we will discuss critical evaluation of Vygotsky's theory. So, Lev Vygotsky was a Russian psychologist who was born in 1896 in Orsha, Belarus. He is best known for developing the socio-culture theory, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Early life की बात की जाए, he was born in middle-class Jewish family and was homeschooled till age 14. Later on, he graduated from private Jewish gymnasium. Then he studied law at Moscow University, और law पढ़ने के साथ साथ he became more interested in attending the lectures on philosophy, education, literature and psychology. और यहीं से psychology में और child development में इनका interest ज़्यादा develop हुआ, जिसके बाद से he mainly focused on understanding the factors that plays very important role in the child development. ठीक है. करियर और कंट्रीब्यूशन की मेनली बात की जाए, ही वर्कड एज अ टीचर एंड रिसर्चर इन मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन 1924, और इसके बाद ही आल्सो कंप्लीटेड हिज पीएचडी. पीएचडी रिसर्च कंप्लीट करने के दौरान ही वाज सफरिंग फ्रॉम टीबी, जो कि उस टाइम पे क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती थी. सो बहुत मुश्किल से पीएचडी रिसर्च कंप्लीट की गई. Later on, he died at the age of 37 because of this disease. So overall, अगर contribution की बात की जाए, he mainly focused to understand the connection between language, thought, culture, and also highlighted the importance of play in children development. की publications की बात की जाए तो thinking and speech and mind in society ज़्यादा notable उनकी publications हैं, और माइंड इन सोसाइटी बेसिकली पब्लिश्ड posthumously in 1978, यानी आफ्टर द डेथ इसकी राइटिंग्स, लेक्चर्स और नोट्स की बेस पे 4 ऑथर्स ने बुक की फॉर्म में सारे जो नोट्स थे उनको कंपाइल किया और 1978 में इसको पब्लिश किया, जो कि बहुत नोटेबल और फेमस बुक कहलाती है, माइंड इन सोसाइटी. टोटल 6 बुक्स पब्लिश हुई हैं लेव वाइगॉट्स्की की, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड है. सो वी हैव टू रिमेंबर, डिस्पाइट sudden death at the age of 37, he still left a very important and positive impact on psychology. So, what is Lev Vygotsky's socio-culture theory? According to Vygotsky, society and culture plays very important role in learning process. Further, he said कि learning is a social process. बच्चे सीखेंगे और डेवलप तभी करेंगे जब वो सोशल इंटरेक्शंस उन लोगों के साथ करेंगे जो उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे. पेरेंट्स भी आ सकते हैं, पीयर ग्रुप भी आ सकता है, कोई भी एल्डर मेंबर भी हो सकता है. जब उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी और तभी आप नई चीज़ों को सीखोगे, नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को समझोगे. सो ही सेड कि सोशल इंटरेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाइडेंस फ्रॉम अदर्स. जब बच्चों को प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, पेरेंट्स हर टास्क में उन मीडिएट करेंगे, उनको समझाएंगे. टीचर्स और कोई भी कम्युनिटी मेंबर जब उनको हेल्प आउट करते हैं किसी भी टास्क में, उनको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, तो बच्चे जल्दी उस टास्क को सीखेंगे और कंप्लीट करेंगे. ठीक है कि कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट उनके सामने है तो टीचर्स प्रॉपरली उनको जब समझाते हैं कोई नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट, तो बच्चे उतना जल्दी उस चीज़ को पिक करते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ इंटरनलाइजिंग बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. बच्चे विटनेस कर रहे होते हैं कि जो एल्डर्स हैं उनके क्या बिलीव्स हैं, उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, और इसकी बेस पे वो अपने पर्सपेक्टिव्स और अपनी वैल्यूज़ डेवलप कर रहे होते हैं और उनको इंटरनलाइज कर रहे होते हैं.
लेट्स एज्यूम कि एक घर का क्या इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स जो हैं वो रिलीजन के बारे में अपना क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं, कल्चर के बारे में क्या बिलीव्स हैं उनके पेरेंट्स के, एल्डर्स के, रिलेशनशिप को क्या अहमियत दी जाती है। सो इस तरह से जब वो विटनेस कर रहे होते हैं बड़ों के बिहेवियर्स और उनके एटीट्यूड्स, इसी की बेस पे वो अपनी वैल्यूज़ और अपने पर्सपेक्टिव्स को इंटरनलाइज कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, कल्चर शेप्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि जितनी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, इट इज़ टोटली शेप्ड बाय द कल्चर, रिजल्टिंग इन वेरिएशंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि तभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट cultures that exist around the world. Last point is language is a key. Vygotsky के accordingly, language plays a very crucial role in learning and cognitive development, and it is a root of all learning. Obviously एक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस किसके ज़रिए करेगा? लैंग्वेज के ज़रिए करेगा। उसके क्या आइडियाज़ हैं, उसकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, वो अपने बिलीव्स और एटीट्यूड्स को लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस करेगा। सो ही सेड दैट इट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक कोट मैंने मेंशन किया है लिव वाइगॉट्स्की का, थ्रू अदर्स वी बिकम आवर सेल्व्स। रोल ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इस कोट में, कि दूसरों के ज़रिए या दूसरों की हेल्प और गाइडेंस के ज़रिए हम अपना आप बनते हैं। ये जो हमारी आइडेंटिटी एक सेपरेट बनती है, दूसरों की मदद के ज़रिए बनती है। दैट वाज मेनली सेड बाय लिव वाइगॉट्स्की। नाउ वी विल डिस्कस मोर नॉलेजेबल अदर्स। इमेजिन करें एक बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है और उसके फादर उसको साइकिल चलाने में हेल्प कर रहे होते हैं, उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ रहे होते हैं और उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट फादर इज़ ऑल्सो गिविंग टिप्स कि किस तरह से साइकिल को बैलेंस करना है, पैडल को कैसे मूव करना है। बाप की हेल्प के साथ बच्चा कुछ टाइम तक साइकिल चलाना सीख लेता है, ठीक है। सो वाइगॉट्स्की का भी यही कहना है कि बच्चे तभी ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो टास्क के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं जो कि वो समझना चाह रहे हों। सो जो ज़्यादा जानता है, वाइगॉट्स्की ने उस पर्सन के लिए एक टर्म क्रिएट की है जो कि है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको MKO भी कहा जाता है। मोर नॉलेजेबल अदर आपका पेरेंट भी हो सकता है, कोई भी टीचर भी हो सकती हैं, इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो उस टास्क के बारे में ज़्यादा जानता है, ठीक है। सो वाइगॉट्स्की के मुताबिक जब गाइडेंस और सपोर्ट प्रॉपरली मिलती है बच्चे को, तो बच्चा अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाता है और उस स्किल पे मास्टरी उसको आ जाती है, ठीक। सेट के MKO की जो हेल्प होगी वो बच्चे को फुल पोटेंशियल अचीव करने में हेल्प आउट करेगी और बच्चा ज़्यादा अच्छे से उस स्किल को एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ZPD इज़ अ रेंज, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ अ जोन वेयर अ पर्सन लर्न्स और ग्रो विद द हेल्प ऑफ और विद द गाइडेंस ऑफ मोर नॉलेजेबल पर्सन। इस स्टेज पर बच्चा अकेले वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। जब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है नॉलेजेबल पर्सन से, तो वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। और यही वो स्पॉट होता है जहाँ बच्चे को सिखाया जा सकता है और उसकी स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। इमेजिन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, सो देर आर 2 लेवल्स। पहला लेवल ये है कि आपको ऑलरेडी वो चीज़ आती है, आप अकेले उसको कर सकते हो परफॉर्म। जैसे कि एक बच्चा ट्राई साइकिल सही से चला सकता है, सो ही वट ही कैन डू अलोन। लेकिन क्या हुआ, उसके फादर ने जब उसके लिए न्यू बाई साइकिल लाई, तो इस टाइम पर उसको हेल्प चाहिए। तो सेकंड लेवल क्या हुआ, वट ही कैन डू विद द हेल्प। सो इस स्टेज पर बच्चा उस साइकिल चलाने में इतना ज़्यादा माहिर नहीं है, ही इज़ नॉट गुड एट इट येट, लेकिन प्रॉपर उसको गाइडेंस मिलती है अपने फादर की तरफ से, तो वो साइकिल चलाना भी सीख लेता है, ठीक। सो ZPD इज़ अ गैप बिटवीन दीज 2 लेवल्स, यानी वो एरिया जहाँ पर बच्चे को हेल्प चाहिए टू लर्न एंड ग्रो एंड टू लर्न द न्यू स्किल। जब सपोर्ट मिलेगी तो बच्चा बहुत जल्दी से उस स्किल को सीख लेगा, एज़ कम्पेयर टू कि जब वो अकेले परफॉर्म कर रहे होगा, ठीक है।
So this is the main concept of zone of proximal development. Now we are going to discuss three stages of zone of proximal development. इस पिक्चर के ज़रिए हम इन स्टेजेस को समझ लेते हैं. जो येलो सर्कल है that indicates task that learner can do without assistance, यानी अपने ओन पर जब बच्चा जो टास्क कर सकता है वो ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है. सेकंड जो स्टेज है टास्क दैट लर्नर कैन डू विद असिस्टेंस, यानी थ्रू स्कैफोल्डिंग थ्रू असिस्टेंस बच्चे को टास्क करवाना सिखाया जाए, तो हम कह सकते हैं दैट इंडिकेट्स ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जो थर्ड हाईलाइटेड या ज़्यादा डार्केस्ट सर्कल है वो है टास्क दैट लर्नर कैन नॉट डू इवन विदाउट असिस्टेंस, यानी आउट ऑफ रीच है, उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी से हट के है. लेट्स एज्यूम एक बच्चा इस स्टेज पर बाईसाइकिल चलाना सीख रहा है. अगर उसको इस स्टेज पर गाड़ी चलाना सिखाया जाए दैट वुड बी आउट ऑफ हिज कॉग्निटिव कैपेसिटी. ठीक है, सो ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है ये वो एरिया है जहाँ पर असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाए तो बच्चा नहीं सीख सकता. ठीक है, सो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जो सेकंड सर्कल है दैट हाईलाइट्स के लर्निंग पॉसिबल है जब बच्चे को प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, मोर नॉलेजेबल जब उनको गाइड करेंगे असिस्ट करेंगे तो बच्चा न्यू स्किल्स में न्यू टास्क में मास्टरी एक्वायर कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस. वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंगली वी आर बोर्न विद बेसिक मेंटल एबिलिटीज लाइक अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी. सो ही सेड के वी आर बोर्न विद दीज बेसिक एबिलिटीज, लेकिन सोशल इंटरेक्शन के बाद क्या होता है यही बेसिक एबिलिटीज़ एडवांस थिंकिंग स्किल्स में डेवलप हो जाती हैं, जिसको वाइगॉट्स्की ने टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन का नाम दिया है. ठीक है, क्या है टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन? यानी आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ को सीख जाते हो. ओवरऑल वहाँ के मेंबर्स का क्या थिंकिंग पैटर्न है, क्या थिंकिंग स्टाइल है, आप उसको सीख जाते हो और उस कम्युनिटी में एडजस्ट हो जाते हो, अडेप्ट करने की कोशिश करते हो. इसमें पहली एग्जांपल जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन. आप जिस एरिया में रह रहे होगे, जिस कम्युनिटी या सोसाइटी में रह रहे होगे, वहीं की लैंग्वेज को आप अडेप्ट करते हो. दैट इंडिकेट्स यू हैव यूटिलाइज्ड द टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन. ठीक है, इसी तरह सिम्बल्स का इस्तेमाल करके आप कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होते हो. एक बच्चा जब मैथ्स के सम्स अटेम्प्ट कर रहा होता है तो वो सिंपली लाइंस ड्रॉ करके भी नंबर्स को काउंट कर रहा होता है, उसको हर वक्त टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो सिम्बल्स का इस्तेमाल करके भी कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है. इसी तरह एक कारपेंटर एक आर्टिफैक्ट बना रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्जर्विंग अदर्स. ठीक है, दूसरों को ऑब्जर्व करके अपने कल्चर को ऑब्जर्व करके उसने उस स्किल को सीखा और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है. दैट शोज द टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन. ठीक है, सो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंगली हम अपने कल्चर अपनी कम्युनिटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं और उनके थिंकिंग पैटर्न सीखते हैं, जिससे हम आसानी से उस सोसाइटी में उस कम्युनिटी में अडेप्ट कर लेते हैं. सो हमारी बेसिक मेंटल एबिलिटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स वो मोर एडवांस थिंकिंग स्किल्स में डेवलप हो जाती हैं. दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस दैट लीड्स टू टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन. Next topic is role of social influence in cognitive development. Vygotsky के accordingly learning is an active process, यानी बच्चा जब actively participate करता है learning process में तभी वो सीख सकता है. It is not a passive process. ठीक है, ही फर्दर सेट के बच्चे सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं. जब भी उनसे कोई टास्क परफॉर्म करने का कहा जाएगा, जब प्रॉपरली उनको असिस्टेंस गाइडेंस मिलेगी, वो इंटरेक्ट करेंगे सोशली, तभी वो अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को या टास्क को कंप्लीट कर सकेंगे. सो ही सेड इट कैन नॉट हैपन इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली. इसमें आप एग्जांपल भी रख सकते हैं कि एक बच्चे को आपने एक रूम में रख दिया है अकेले कि आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है और एक को प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है. ऑब्वियसली अगर वो जितना भी इंटेलेक्चुअल होगा उसको स्टिल कुछ हिंट्स कुछ प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे टास्क कंप्लीशन के लिए. ठीक है, सो सोशल इंटरेक्शन की वजह से बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं इंडिपेंडेंटली अगर उनको कंपेयर किया जाए. थर्ड पॉइंट है जी टीचर्स और मेंटर्स गाइड लर्निंग थ्रू कोऑपरेटिव डायलॉग. यानी कोई भी टास्क आपने बच्चे को सिखाना है, एक टीचर
कि ये ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली डायलॉग के ज़रिए उस प्रॉपर टास्क को समझाए, बच्चों को गाइड करे, ताकि बच्चे इस लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हों। सो लर्निंग अकर्स व्हेन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन। लर्निंग तभी पॉसिबल होगी या तभी हम कहेंगे कि बच्चे ने सीखा है, जब वो समझेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इस इंफॉर्मेशन को आगे अप्लाई भी करेगा। ठीक है, जैसे कि एक मैथ्स की बात की जाए तो एक्सरसाइज के जो स्टार्ट के सम्स हैं वो बच्चे को टीचर सिखाती है। ठीक है, बच्चा जब समझ जाता है तो वो लेटर ऑन जो डिफ़िकल्ट सम्स हैं उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। सो दैट इंडिकेट्स कि ही इज़ एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग एंड अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन दैट टीचर हैज़ गिवन। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ गाइडेड लर्निंग इज़ बेनिफिशियल। यानी गाइडेड लर्निंग इंडिकेट्स के ऐसा प्रोसेस जिसमें टीचर प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करती है टास्क को, वर्बल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, और इस प्रोसेस के दौरान बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और बच्चे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स को भी सीख जाते हैं। लेट्स अज्यूम एक बच्चे को पज़ल सॉल्व करने का कहा गया है एक आर्ट एक्टिविटी में। ठीक है, तो उस दौरान बच्चे को टीचर प्रॉपर हिंट्स प्रोवाइड कर रही है, प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड कर रही है और प्रॉपरली उनको डेमोन्स्ट्रेट करिए कि किस तरह से ये पज़ल सॉल्व करनी है। ठीक, अब इस दौरान स्टार्ट में टीचर हिंट्स और फीडबैक्स दे रही है, बट लेटर ऑन टीचर सपोर्ट इज़ रिड्यूस्ड। टीचर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सपोर्ट को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलीज़ करती है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद वो टास्क परफॉर्म करे। शुरू में जो ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन और प्रॉम्प्ट्स और फीडबैक्स दिए हैं उससे हेल्प मिलती है बच्चे को, और बच्चा अपने टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, या लेट्स अज्यूम पज़ल सॉल्व करना शुरू कर देता है। दैट बेसिकली इंडिकेट्स द गाइडेड लर्निंग प्रोसेस। इसी तरह स्पोर्ट कोच शुरू में बच्चों को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देता है और हिंट्स देता है और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता है, और फिर बाद में बच्चों पे छोड़ देता है कि अब वो ये पर्टिकुलर गेम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करनी है। सो गाइडेड लर्निंग अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की इज़ वेरी हेल्पफुल, जिससे बच्चे बहुत जल्दी से टास्क को कंप्लीट करना सीख लेते हैं। Now we will discuss importance of language. According to Vygotsky, language is very crucial for communication and cognitive development. And he further said कि social interaction जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, बच्चों की language skills भी उतनी ज़्यादा अच्छे से develop होंगी. So he gave 3 stages of speech: social speech, private speech, and silent speech. Social speech basically develops around 2 years, जिसमें बच्चे दूसरों से बातें कर रहे होते हैं. They become more talkative और इसके दौरान उनकी सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हो रही होती हैं। सेकंड स्टेज इज़ प्राइवेट स्पीच अराउंड 3 इयर्स। एंड अगर आपने 3 साल के बच्चे को ऑब्ज़र्व किया है या आपने देखा है अपने सराउंडिंग में, तो ही दे लव टू टॉक टू वन सेल्फ आउट लाउड। यानी वो ऊंचा ऊंचा बातें करना, डिफरेंट इमेजिनरी सिनेरियोज क्रिएट करके वो बातें कर रहे होंगे अपने टॉयज से, और प्ले टाइम में भी वो ऊंचा बात कर रहे होते हैं। दैट बेसिकली इंडिकेट्स देयर प्राइवेट स्पीच। ठीक है, लास्ट स्टेज इज साइलेंट इनर स्पीच। इट अपीयर्स अराउंड 7 इयर्स। थिंकिंग टू वन सेल्फ साइलेंटली, यानी आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अब साइलेंट हो चुका है। आपने जिस चीज़ के बारे में सोचना है वो साइलेंटली ही आप सोच रहे होगे, एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज। सो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंगली बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स सोशल इंटरेक्शंस की वजह से ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती हैं, और बच्चा प्रोग्रेस करता है फ्रॉम टॉकिंग टू अदर्स टू थिंकिंग साइलेंटली टू दमसेल्फ। यानी जो लास्ट स्टेज आती है, बच्चा जो भी सोच रहा होगा वो साइलेंटली सोच रहा होगा किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, या उनको रिस्पॉन्ड करने का कहा जाएगा तो जो भी उनकी थिंकिंग होगी वो साइलेंटली कंटिन्यू होगी और वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे होंगे। ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेजेस जो कि मेंशन किए हैं वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरी में। डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्पीच इन यंग चिल्ड्रन, कि क्या रोल है प्राइवेट स्पीच का, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वाइगॉट्स्की का कहना है कि प्राइवेट स्पीच बेसिकली एक स्टेज है बिटवीन सोशल स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच, जो कि सेल्फ रेगुलेशन में बच्चे को हेल्प आउट करती है। यानी बच्चा जितनी ज़्यादा प्राइवेट स्पीच में इन्वॉल्व होता है उतना ही वो अपने बिहेवियर्स को लेटर ऑन रेगुलेट कर सकता है। फर्दर ही सेड कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इट इज़ वेरी हेल्पफुल और बेनिफिशियल, क्योंकि जितना ज़्यादा
प्राइवेट स्पीच होगी, बच्चा उतना ही इंटरनलाइज़ कर रहा होता है अपनी बातों को और अब उसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रही होती है, ठीक है? सो ही सेड कि इंटरनलाइजिंग स्पीच एंड लैंग्वेज इज़ एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव ग्रोथ, क्योंकि वो बोल-बोल कर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपने टॉयज़ के साथ खेलते हुए डिफरेंट सिनेरियोज़ क्रिएट करके, तो उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। प्राइवेट स्पीच प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इमेजिनेशन को ज़्यादा इन्हेंस करती है और बच्चे की थॉट्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है? इस स्टेज में आपने देखा होगा बच्चा इमेजिनरी प्लेज में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। प्ले किचन उनके लिए अरेंज कर दो तो वो प्रॉपरली एक सिनेरियोज क्रिएट कर रहे होते हैं इमेजिनरी। सो ही सेड कि प्राइवेट स्पीच उनकी इमेजिनेशन को ज़्यादा इन्हेंस करता है, जो लेटर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं और बच्चों की थॉट ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको मदद मिलती है। फर्दर ही सेड के बच्चे उतने ही सोशली कॉम्पिटेंट होते हैं, जितना ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं उनकी सोशल कॉम्पिटेंसी भी ज़्यादा होती है, यानी लेटर ऑन लाइफ में जब उनको सोशल इंटरेक्शंस करनी पड़ती हैं, दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, तो वो उतने ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, उतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ वाइगॉट्स्की थ्योरी, यानी कितना वाइगॉट्स्की की थ्योरी रियल लाइफ सेटिंग में एप्लीकेबल है। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंगली लर्निंग को सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनिशियली बच्चा जो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, लेटर ऑन वो उसको इंटरनली प्रोसेस कर रहा होता है, यानी वो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहा होता है थ्रू आउट द लाइफ। ही फर्दर सेड के लर्निंग प्रोसेस के दौरान इन मेथड्स को लाजमी इस्तेमाल किया जाए, जिसमें सबसे पहला है रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि जब भी आपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो आप उसको एक्टिवली इंगेज करोगे, ठीक है? ही मस्ट टेक टर्न, जिसमें आप उसकी डिस्कशन बेस्ड लर्निंग भी हो सकती है। और लेट्स अज्यूम आपने एक पैराग्राफ दिया है या एक स्टोरी दी है जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप ग्रुप्स की फॉर्म में इसको समझो और एक दूसरे को भी समझाओ। सो बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं या उनको क्या समझ आया इस स्टोरी से। एट द एंड टीचर का क्या काम है कि वो समराइज़ भी करे और क्लैरिफाई भी करे। ऑब्वियसली बच्चे अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे, बट टीचर एट द एंड उसको समराइज़ और क्लैरिफाई भी करती है। सेकंड है यूज़ ऑफ स्कैफोल्डिंग और अप्रेंटिसशिप, यानी कि शुरू में बच्चे को आप प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, उनको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स और हिंट्स दे रहे हो कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने में। लेटर ऑन आप वो हेल्प रिड्यूस कर देते हो कि इंडिपेंडेंटली बच्चा करे। जैसे कि मैथ्स के सम शुरू में बच्चे को सिखाए जाते हैं और लेटर ऑन उनको अटेम्प्ट करने के लिए डिफरेंट हिंट्स प्रोवाइड की जाती हैं कि इस तरह से अटेम्प्ट करें। ओवरऑल जो गाइडलाइंस होती हैं वो टीचर साथ साथ मेंशन कर रही होती हैं और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि बच्चे को कहा जाता है कि आपने इंडिपेंडेंटली ये लास्ट सेम्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करे लर्निंग प्रोसेस में, उसको डिस्कशन में इंगेज किया जाए, क्वेश्चन आंसर सेशन में इंगेज किया जाए और बच्चा अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स को ओपनली एक्सप्रेस करता है लर्निंग प्रोसेस के दौरान। दैट वुड बी बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब पेरेंटिंग की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। सर हम बच्चों को बहुत सारे टास्क सिखा सकते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ डायलॉग के ज़रिए और इंटरेक्शन के ज़रिए हम बच्चों को बहुत सारी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझा सकते हैं। ऑफिस सेटअप में मेनली देखा जाए तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, टीम वर्क का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इस पर ज़्यादा काम किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो न्यू आते हैं एम्प्लॉयज़ वो अच्छे से सीख सकते हैं। जब न्यू एम्प्लॉय आएगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, तो जब कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी तो वो अच्छी तरह से ऑफिस सेटअप को और ओवरऑल जो सिस्टम है उसको समझेगा और जो भी टास्क उसने कंप्लीट करने हैं उनको भी वो अच्छी तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू समझ सकता है। Now we will discuss the last topic, that is critical evaluation of Vygotsky's theory. So despite gaining fame, this theory still faced few criticisms like other theories. तो हम one by one इनको discuss कर लेते हैं। पहला है cultural universality. क्रिटिक्स ने कहा है कि ये थेरी वेस्टर्न कल्चरल अजम्पशंस की बेस पे बनी है, इसको यूनिवर्सली डिफरेंट कल्चर्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। नंबर टू इज़ लैक ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि थेरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया गया। सो हम हाइपोथेसिस को भी टेस्ट नहीं कर सकते, एम्पिरिकली उसको प्रूव
या डिसअप्रूव नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, ऑब्जर्वेशनल मेथड का इस्तेमाल किया गया है, सो इसकी थ्योरी को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट इज़ he focused more on social interaction and active participation and ignore other main factors like biology, genes and individual differences। ठीक है। अनदर मेन कॉन्सेप्ट इज़ हाईलाइटेड कि स्टेजेस के ज़रिए नहीं एक्सप्लेन किया गया डेवलपमेंट को, जैसे कि बाकी थेरिस्ट ने जैसे पियाजे हो गया, एरिक्सन हो गया, कोलबर्ग हो गया, उन्होंने स्टेजेस के थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है। सो लैक ऑफ क्लियर स्टेजेस एंड दिस theory is too broad. So these were all the criticism that were faced by Lev Vygotsky socioculture theory. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और यू वांट टू गिव एनी सजेशन, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।